Okay, beta, any questions regarding your last assignment? कोई क्वेश्चन है किसी का असाइनमेंट के बारे में? No questions? No, sir. Okay. Okay. Let's move to these examples because we did this example with syndicate C yesterday, and now in this class you will be able to appreciate why we have studied the Fourier transform, discrete time Fourier transform property. Now it is asked that we have to get the Fourier transform of this sequence x of n is equal to a raised to power n u of n minus 5. Now we know that if we are interested in the discrete time Fourier transform, we can use this equation, which is x of exponential j omega n is equal to minus infinity to infinity x of n exponential minus j omega n. There is one way that we use this x of n in this equation, but there is another way of using the discrete time Fourier transform properties and get the Fourier transform of this x of n with uh, an easy way. So we know that a raised to power n u of n का जो Fourier transform pair है, that is 1 over 1 minus a exponential minus j omega. We had already calculated it and we said that we will be using this again and again. So now we have to get, because now our x of n this time is x of n is equal to a raised to power or a raised to power n u of n minus 5. Now what we will be doing, we will be using properties like scaling and time shifting to transform our x of n into some form, and then we will be using the shifting and time shifting properties. Sorry, scaling and time shifting. So we can write this a raised to power n u of n minus 5 as a raised to power n minus 5 u of n minus 5. And as we have included a raised to power minus 5 in this term, we will be multiplying this with a raised to power 5 as well. So this is the transformation of this a raised to power n u of n minus 5 into this form, a raised to power 5 a of n minus 5 u of n minus 5. Why we have converted it into this form? Because n is replaced with n minus 5 in this. This is here we can use the time shifting property, and because of that some constant has been introduced in this term as well, and that would be using the scaling property of the discrete time Fourier transform. Now, what is being done here? A raised to power 5 का discrete time Fourier transform क्या है? That is a scaling factor that will come as it is. A raised to power n u of n का Fourier transform क्या था? That was 1 over 1 minus a exponential j omega, that is there. But as there is a shift of minus 5 there, n is replaced with n minus 5, and we know from the discrete time Fourier transform property, that the Fourier transform will not change, only the phase term will be introduced in that. So, and the phase term is proportional to the delay. So exponential minus j omega, what was the delay? That was d, so d is here. So the same thing will be done here as well. So now the Fourier transform is as it is, as it was there, a raised to power u of n. But as
a new term -5, the delay is introduced here. So that's why a delay phase term is introduced in your frequency domain, that is exponential minus j 5 omega. So x of exponential j omega can be written as a raised to power 5 exponential minus j 5 omega over 1 minus a exponential minus j omega, and the condition will remain the same, which was for the original DTFT x a raised to power n u of n, that the condition is a is lesser than 1. Any questions, beta? जी बेटा, कोई क्वेश्चन, किसी के पास कोई कंफ्यूजन, कोई मसला मसाइल? Okay. So there is another question that we are given a difference equation y of n minus 1 over 2 y of n minus 1, and that's equal to x of n minus 1 over 4 x of n minus 1, and we are interested in knowing the impulse response of this system. Well, we can use the discrete time Fourier transform in order to get that. And if we are interested in knowing the h of n, which is the impulse response, it has in fact the Fourier transform pair with h of exponential j omega. And for getting h of exponential j omega, it is what? It is nothing but y of exponential j omega divided by x of exponential j omega, the transfer function in W domain or discrete frequency domain. आप ये find करेंगे, and then you will be having the inverse expression of inverse discrete time Fourier transform properties use करते हुए you will end up with h of n. So let's do it. So y of n, that was given, y of n minus 1 over 2 y of n minus 1, that's equal to x of n minus 1 over 4 x of n minus 1. Linear constant coefficient difference equation, that's the moving average portion, x वाला जो portion है आपका, and that's the autoregressive portion. Okay, now we can take the discrete time Fourier transform of that. Y of n का Fourier transform क्या है? Y of exponential j omega minus 1 over 2 y of n minus 1. Here what you are doing, you are introducing a delay in your signal. So 1 over 2 is a scaling factor. Y of n minus 1 ka Fourier transform will be same, but a phase term will be introduced because of this delay. Exponential minus j omega, in fact, it's multiplied by 1 because of this one. Okay, and here x of n ka Fourier transform x of exponential j omega minus 1 over 4, the scaling factor come as it is, and x of n minus 1 ka Fourier transform will be x of exponential j omega, but a phase term will be introduced, which is exponential minus j omega. Now on this side, we will be taking common as y of exponential j omega common area 1 minus 1 over 2 exponential minus j omega, and on this side x of exponential j omega is common. This is 1 minus 1 over 4 exponential minus j omega. And as we said that we are interested in knowing the transfer function h of exponential j omega, that is nothing but y of the output over input, the discrete time Fourier transform versions of those, and that's equal to 1 minus 1 over 4 exponential minus j omega over 1 minus 1 over 2 exponential minus j omega, and h of exponential j omega will be equal to 1 over 1 minus 2 exponential j omega and minus 1 over 4 exponential minus j omega over 1 minus 2 exponential j omega. This is just a simplified version of that. Why we have done it? Because we have the Fourier transform pairs in this form. So अब हम इसका inverse Fourier transform जो है बोलेंगे. So h of n will be equal to 1 over 1 minus 1 over 2 exponential j omega. It is in the form 1 minus 1 over 1 minus a exponential j omega. The time domain version is a raised to power n u of n. यहाँ पे जो आपका 1 over 2 है, that's acting as a. So it would be 1 over 2 raised to power n u of n. Directly you can write it. And that's a scaling factor minus 1 over 4. And here it is 1 over 2 raised to power n u of n. But because of this term exponential minus j omega,
n will be replaced with n minus 1 because टाइम डोमेन में जब भी आपको कोई डिले टर्म नजर आती है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, you introduce a delay in the time domain and that delay will be proportional to the phase term here. यहाँ पे जो भी ओमेगा के साथ आपको multiplication factor नजर आ रहा होगा, that would be the delay. Here the multiplication factor is 1, so that's why 1 over 2 raised to power u of n minus 1. So that's your impulse response. Questions, please. सर ये लास्ट टाइम में जो क्या किया है? क्या नाम है सर, बेटा ये आपका? अवैस। अवैस जी बेटा, यहाँ पे इशू है आपका इधर इस टर्म में एच एफ एक्सपोनेंशियल जी ओमेगा से एच एफ एन में। जी 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 जी, तो बेसिकली बेटा ये हमारे पास पेयर मौजूद है, इसी को हम यूज कर रहे हैं ना। ए रेज टू पावर यू ऑफ एन जो है दैट इज इक्वल टू 1 over 1 माइनस ए एक्सपोनेंशियल माइनस जी ओमेगा। ये हम बार बार यूज करेंगे, ये हमने यहाँ पे भी यूज किया हुआ है। ओके सर, ठीक है ना। इसी को जी, देखते हुए अब देखिए हमारे पास है 1 over 1 माइनस 1 over 2 एक्सपोनेंशियल माइनस जी ओमेगा। तो इसको कंपेयर करें इसके साथ, द ओनली डिफरेंस इज ए इज इन फैक्ट एक्टिंग एज 1 over 2। अब टाइम डोमेन में जाना यस है, तो टाइम डोमेन जी, में जाना है तो ए रेज टू पावर एन यू ऑफ एन क्या हो जाएगा 1 over 2 रेज टू पावर एन यू ऑफ एन। ठीक है, ओके ओके सर, और समझ इसी लगा। तरह से ये स्केलिंग फैक्टर है, ये उसी तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास एक चीज मौजूद थी 1 over 1 माइनस 1 over 2 एक्सपोनेंशियल माइनस जी ओमेगा, उसकी वजह से क्या आता 1 over 2 रेज टू पावर एन यू ऑफ एन आता। लेकिन यहाँ पे एक और टर्म मौजूद थी, फेज टर्म मौजूद थी। उस फेज टर्म की वजह से हमने क्या किया कि हमने डिले डालना है आपने n में, सो n माइनस 1 और u ऑफ n माइनस 1 हो गया। ठीक हो गई बात बेटा? जी सर, समझ लगी। चलो ग्रेट। सर 1/4 स्केलिंग फैक्टर है। 1/4 स्केलिंग फैक्टर है बेटा। चलें आगे, किसी और को कोई कंफ्यूजन? ओके जी, तो द थर्ड एग्जांपल वाज ऑब्टेन x of n। तो नाउ x of ओमेगा जो है वो गिवन है आपको, एंड नाउ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग x of n। इट मींस कि आपको exponential j omega that's given and you are interested in knowing x of n, so that's the Fourier transform pair जो है वो आपके पास मौजूद है। either you go this way or that way, so let's do this। so x of omega or x of exponential j omega is given and now you have to reach x of n। अच्छा जी, पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं इसको so that के सिंप्लीफाई हो जाए ये चीज। so here एक्सपोनेंशियल माइनस जी ओमेगा को हम यूज कर लेते हैं एज, ये पार्शियल फ्रैक्शन की हुई है a over 1 माइनस ए एक्स, एक्सपोनेंशियल जी ओमेगा को हम x कह रहे हैं, और इसी तरह से प्लस b over 1 माइनस बी एक्स। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग a इज इक्वल टू a over a माइनस b और b इज इक्वल टू b over b माइनस a, एंड यू विल एंड अप विद x ऑफ एक्सपोनेंशियल जी ओमेगा इज इक्वल टू a over a माइनस b divided by 1 minus a x is exponential j omega, so I have written it, and b over b minus a 1 minus b exponential minus a over a minus b, that's a scaling factor। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में, so a over a minus b उसी तरह से स्केलिंग फैक्टर है, वैसे ही आ जाएगा। अब इसको गौर से देखिए, 1 over 1 minus a exponential minus j omega किस चीज के इक्विवेलेंट है a raised to power n u of n, and that is a scaling factor as well, that will come as it is, and 1 over 1 minus b exponential minus j omega, that would be b raised to power n u of n। so in this way you can calculate your x of n। questions please? now there was another way of doing it which was rather difficult कि अगर आपने inverse discrete time Fourier transform find out करना है तो you take this x of exponential j omega, put it in this equation which is the inverse discrete time Fourier transform equation, आप इसके अंदर पुट कीजिए, इसको इंटीग्रेट कीजिए, and you will end up with this thing। but now
as you are using discrete time Fourier transform properties. So it's very easy to use properties, particularly in terms जब आपको inverse discrete time Fourier transform find out करना हो, to avoid this integral, you can use properties and get these expressions very easily. Questions, beta? जी बच्चा, any questions? सर ये वाला नहीं समझ आया सर। तो नहीं समझ आया तो पूछे ना, क्या चीज समझ में नहीं है, आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा ना, बोलें। सर सेकंड स्टेप से नहीं समझ आया सर। बेटा सेकंड स्टेप कौन सा वाला सेकंड स्टेप, बोलें यहाँ से? यस सर। ओके, देखिए बेटा, मुझे प्रॉपर्टीज यूज करनी है। एक तरीका तो ये है कि मैंने एक्स ऑफ ओमेगा से एक्स ऑफ एन की तरफ जाना है। एक्स ऑफ एन की तरफ जाने के लिए मेरे पास डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के पेयर्स मौजूद हैं। अगर आपने कभी इन स्लाइड्स को देखा हो तो यहाँ पास ये वाली इक्वेशन अगर आप देखें, दैट्स इनवर्स ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन आपके पास मौजूद है, दिस वन। ठीक है, आपके पास अगर एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल जी ओमेगा है तो आप एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल जी ओमेगा उठाइए, इस इक्वेशन में डालिए, इंटीग्रेट कीजिए, एंड यू विल बी गेटिंग योर एक्स ऑफ एन, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की, और मोस्टली जो आप प्रॉपर्टीज यूज कर रहे होते हैं वो लिनियरिटी, टाइम फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल, ये प्रॉपर्टीज आप यूज कर रहे होते हैं। तो अगेन इधर भी हम सिर्फ वही काम कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। सो लेट्स सी दिस, कि आप या तो ये काम कर लेते, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं क्लास में हूँ, बाद में करते। अच्छा जी जी, बोले सर। सॉरी बेटा, ओके, मैं जरा प्रूफ हो गया था। यहाँ थे जी हम, जिसने सवाल पूछा था वो तो बताए यहाँ थे। यस सर। ओके बेटा, तो नाउ एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल जी ओमेगा हमने फाइंड करना है, एंड वी विल बी यूजिंग प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब अगर हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं तो इस एक्सप्रेशन को देखिए, तो ये एक्सप्रेशन ऐसा नहीं है कि हम कोई प्रॉपर्टीज को आसानी से इस्तेमाल कर सकें, हम इसे ब्रेक करना चाहते हैं। तो द इजीएस्ट वे टू ब्रेक दिस इज पार्शियल फ्रैक्शन। आपने सिर्फ इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर ली, पार्शियल फ्रैक्शन करना आती है ना? यस सर।
एफएससी की चीज है, कोई इंजीनियरिंग का मसला नहीं है, एफएससी में पढ़ी थी। तो ये आपने कर दिया a ओवर 1 माइनस, ये एक्सपोनेंशियल ओमेगा को मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए x लिख दिया है, कुछ और बात नहीं है, ठीक है। और इसको मैंने इधर भी x ही कर दिया, एक्सपोनेंशियल माइनस जी ओमेगा को। सो a ओवर 1 माइनस ax प्लस b ओवर 1 माइनस bx, व्हेन यू विल बी सॉल्विंग दिस you will be getting a is equal to a over a minus b और b is equal to b over b minus a. So this equation, ये जो आपको नजर आ रही है, that would be converted into a over a minus b divided by 1 minus a exponential j omega plus b over b minus a 1 minus b exponential minus j omega. Now this is the equation जिसको हम properties आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, because we have the pair a n un, फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर इसका क्या है, दैट इज 1 over 1 minus a exponential minus j omega where a is lesser than 1. We have done it so many times, ठीक है ना, ये आपके सामने मौजूद है ये पेयर, और लास्ट लेक्चर में हमने ये वैसे भी खुद से किया भी था, so we will be using it. अच्छा जी, चलें यूज करते हैं इसको। क्या हुआ, so ये तो कांस्टेंट हो गया आपका a over a minus b, so a over a minus b आपके पास आ गया। अब आपके पास है 1 over 1 minus a exponential omega 1, so this is a raised to power n u of n, आपने लिख दिया a raised to power n u of n, plus b over b minus a, b over b minus a is just a constant, the scaling factor, आपने लिख दिया, and here it is 1 over 1 minus b exponential minus j omega. By looking at this transformation, you can say that this is b raised to power n u of n. So that's the time domain version of this x of omega, or x of exponential j omega. Got it, beta? Yes, sir. कंफ्यूजन ठीक हो गई ना, क्लियर हो गई बात? Yes, sir. Clear होगी। ओके, चलें आगे चलते हैं। अच्छा जी, नाउ जस्ट लुक एट द आइडियल लो पास फिल्टर। आइडियल लो पास फिल्टर का शेप काइंड ऑफ थिंग, और अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है जी? It's a low pass filter. It will let the frequencies pass which are between 0 and omega c, and all the frequencies above omega c till pi, those will be attenuated. Attenuated का मतलब क्या है? suppressed हो जाएंगी, या ये जो फिल्टर है ये उन्हें 0 से मल्टीप्लाई कर देगा, फ्रीक्वेंसी जो भी कंपोनेंट्स होंगे, जो भी यहाँ से गुजरना चाह रहे होंगे, सो यहाँ पे जो भी इट विल पास नहीं करने देगा, इसको यूं कह देते हैं हम। सो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ये लो पास फिल्टर पास, और हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ये पास नहीं करने देगा, ठीक है। और इसका अगर मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में लिखूं इसको, इस आइडियल लो पास फिल्टर का, तो दैट इज इक्वल टू 1 फॉर ओमेगा इज बिटवीन minus omega c and plus omega c. This is a way of writing. The absolute value of omega is lesser than omega c, means omega c is from minus omega c to plus omega c, and it is 0 for omega c, for omega is between plus omega c to pi and minus omega c to minus pi. So that's the way of writing the things. So that's the frequency response in pictorial form, and that's the equation of that ideal frequency response. Now we are interested in knowing the impulse response of this system. Impulse response क्या होना चाहिए? आपने देख रखा है इसका impulse response, अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो क्या होना चाहिए जी? Any idea? बेटा जाग रहे हैं? सर सिंक फंक्शन। सिंक फंक्शन होना चाहिए। ग्रेट, जबरदस्त। सो लेट्स सी कि हम सिंक फंक्शन को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। सो h of n वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग, एंड दिस इज द सेम इक्वेशन जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई थी कि अगर मुझे h of n फाइंड आउट करना है तो आई विल हैव टू इंटीग्रेट इट, सॉरी, फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, and I know the frequency response, which is h of exponential j omega. Exponential j omega
d omega, and that would be normalized with 1 over 2 pi. So we are doing the same thing, but this time from minus pi to pi अगर आप देखें तो HF लो पास फिल्टर क्या है आपका, that is equal to 1 exponential j omega. So क्या हो रहा है, 1 कहाँ पे है, माइनस ओमेगा सी और प्लस ओमेगा सी पे है. सो द लिमिट्स आर चेंज नाउ. इसी इक्वेशन में लिमिट्स जो है वो चेंज की हैं, माइनस ओमेगा सी से प्लस ओमेगा सी हुआ. एच एफ एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा को चेंज किया, क्या है एच एफ एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा सी और प्लस ओमेगा सी के दरमियान. एंड नाउ यू हैव ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, फाइनली व्हाट यू विल बी गेटिंग, एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा को आपने इंटीग्रेट किया, that is what, that is, it is in fact exponential j omega n. Okay, exponential j omega n divided by what, jn, 1 over 2 pi आपके पास मौजूद था, and this is from minus omega c to plus omega c. So that would be equal to exponential j omega is replaced with omega c and minus exponential minus j omega cn divided by what, divided by 2j pi n. Okay, so exponential j omega cn minus exponential minus j omega cn divided by 2j, that's sin omega cn. So क्या हो जाएगा जी आपके पास, this would be equal to sin omega cn divided by n pi or pi n. So that's your sinc function, and that's the impulse response of your system, and n is from minus infinity to infinity. Any confusions in getting the impulse response of the system from this Fourier transform? Any confusions? बेटा कोई एक बंदा यस नो कोई तो करता रहे ताकि मेरे लिए एक इंडिकेशन हो कि आप लोग फॉलो कर रहे हैं. Yes, sir. Everything's fine. Okay, great. So that's your impulse response. So that's your impulse response. That was the frequency response. That's the HFN, which we have calculated just now, sin omega cn over n pi or pi n. And that's the impulse response, which is moving from minus infinity to infinity, and it never dies. ठीक है, ideally never dies और चलता जा रहा है. Agreed? So whenever Yes, we sir. will be having these kind of filters which are ideal in shape, the impulse response will be this type, from that would be from the sinc type function, and that would be from minus infinity to infinity. And that's why we said that these type of filters are not realizable. They cannot be represented as difference equation. They cannot be represented as transfer function. So that's the reason, because they are ideal filters. ठीक है, तो आइडियल फिल्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में पहले ये देख लेते हैं, फिर वापस आते हैं. सो दैट्स द आइडियल लो पास फिल्टर. बेटा माइक अपना ऑन कीजिए, जिसने भी ऑन किया हुआ, क्योंकि आपकी आवाज फिर रिपीट हो रही. Okay, this is ideal low pass filter. This is ideal high pass filter. Why high pass filter? Because lower frequency components को ये attenuate करा रहा है, और ओमेगा सी से पाई तक जो है वो आपको फ्रीक्वेंसीज जो है वो पास हो रही हैं. इसी तरह से बैंड पास में क्या हो रहा है कि बेटा माइक प्लीज बंद कर दें, आप अपने माइक देखें किसी का ऑन है. Okay, so that's your ideal band pass filter. ये एक बैंड को विच इज बिटवीन ओमेगा मिनिमम एंड ओमेगा मैक्सिमम, ये उस बैंड को तो पास करने की इजाजत दे रहा है ये फिल्टर, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट और हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ये अटेन्यूएट करा रहा है. सिमिलरली दिस इज आइडियल बैंड स्टॉप फिल्टर. इट इज नॉट अलाउइंग अ बैंड, ये वाला जो बैंड है ये इसको पास नहीं होने दे रहा, लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट और हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ये पास होने दे रहा है. एंड रिमेंबर
बिकॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी यहाँ पे भी एक तो ये कि सिमिट्री है, आपको लोअर साइड पे भी इसी तरह की चीज जो है वो नजर आएगी. दैट वुड बी फ्रॉम माइनस ओमेगा सी टू माइनस पाई. दैट इज रियल सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, दैट इज रियल सिमेट्रिक आपके पास होता है. और पीरियोडिसिटी है, सो दैट्स व्हाई प्लस पाई और माइनस पाई के बाहर आप नहीं जा रहे, बिकॉज दैट वुड बी पीरियोडिक एज वेल. या देयर इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग, ये आपने ये भी आप कर सकते हैं कि दैट वुड बी समथिंग लाइक दैट. इट्स द सेम थिंग. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था. ठीक है, सिर्फ माइनस पाई तक ये इस तरह की चीज नजर आएगी. सो इट्स द सेम थिंग. या तो आप 0 और 2 पाई के दरमियान बना लीजिए, या आप माइनस पाई और पाई के दरमियान जो भी बनाना है आप बना. ठीक है, सो दीज आर द आइडियल लो पास फिल्टर्स. Now we come to this approximating the frequency response of ideal low pass filters. ये हमने कहा कि हमारे पास ideal low pass filter है, and we have ended up with the impulse response which was continuing from minus infinity to plus infinity. And we said that these type of filters, because filter को implement तो time domain में ही करना है. अब इसके अंदर infinitely many samples हैं, मैं इसे implement नहीं कर सकता. It is not realizable. Realizable का मतलब ये है कि implementable नहीं है. और अगर मैं इंटरेस्टेड हूं इसको रियलाइजेबल बनाने में, तो क्या कर सकता हूं मैं? क्या तरीका हो सकता है कि मैं इसको क्लिप कर दूं, इधर वाले भी क्लिप कर दूं, इधर वाले भी क्लिप कर दूं, और फिर उसके बाद मैं इसको शिफ्ट करके कॉजल बनाऊं, और चलें जी मेरे पास कुछ सैंपल्स आ जाएंगे. लेकिन इसका इफेक्ट जो है, ऑफ कोर्स वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका इफेक्ट आएगा. सो लेट्स सी वो इफेक्ट क्या है. देखिए, अगर तो मैं ये अप्रोक्सीमेशन करता हूं कि मैं क्लिप करता हूं अपने HFN को, और मैं कहता हूं कि मैं m+1 सैंपल्स अपने 2m+1 सैंपल्स अपने पास रखूंगा, इफ m इज इक्वल टू 5 है. देखिए, आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फॉर इनफाइनाइटली मेनी सैंपल्स टाइम डोमेन में मेरा जो आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स था वो क्या है? वो ये आपको जो डॉटेड लाइन नजर आ रही है, इट्स अ ट्रिक शेप थिंग. ठीक, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी वर गेटिंग इम्पल्स was infinite. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं, क्योंकि मैं इसे रियलाइज करना चाहता हूँ, इस फिल्टर को, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, सो आई विल बी क्लिपिंग माई इम्पल्स रिस्पॉन्स, और आई विल बी कीपिंग जस्ट 11 सैंपल. सो m इज इक्वल टू 5 अगर मैं रखता हूँ, तो ऑफ कोर्स ये आपके पास सिचुएशन हो जाएगी, इट इज एक्सपोनेंशियल j ओमेगा n. So n is equal to minus m to m HFN exponential minus j omega n. What will be the effect on the frequency domain? ये अब आपको जो सॉलिड लाइन नजर आ रही है, दैट्स द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. ऑफ कोर्स दैट्स नॉट एग्जैक्टली दिस थिंग, क्योंकि आपने क्लिप कर दिया है. तो बिकॉज ऑफ द गिब्स फिनोमेना, व्हाट्स हैपनिंग, यू आर स्मीयरिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. आपने स्मीयरिंग इफेक्ट आपके पास आया है, और आपने इस तरह से फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है. जस्ट एन अप्रोक्सीमेट ऑफ व्हाट वाज द लो पास फिल्टर. अच्छा, आपने कहा मैं इसे बढ़ाता हूं, मैं अपने m को 9 रख देता हूं. इस बात का मतलब है दिस टाइम इम्पल्स रिस्पॉन्स के अंदर 19 सैंपल्स होंगे. अच्छा, आपने 19 सैंपल कर लिए. क्या एग्जैक्ट आप उधर पहुंच गए? आप नहीं पहुंचे, लेकिन इससे बेहतर सिचुएशन मिल गई आपको. आपने कहा मैं 31 सैंपल रखता हूं, आपने 31 सैंपल रख लिए, m इज इक्वल टू 15 कर लिया. क्या आप एग्जैक्ट की तरफ पहुंचे? यस, यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स इट, बट यू आर बेटर फ्रॉम m इज इक्वल टू 5, यू आर बेटर फ्रॉम m इज इक्वल टू 9, बट ऑफ कोर्स यू आर नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस. अगर आप मैं m इज इक्वल टू 35 रखता हूं, इट मींस आपके इम्पल्स रिस्पॉन्स के अंदर 71 सैंपल्स होंगे. स्टिल यू आर सीइंग कि आप एग्जैक्टली इस तरह नहीं, बिकॉज यू आर हैविंग दीज काइंड ऑफ इरेगुलरिटीज, या आपको जो पीक्स नजर आ रही हैं, या इस तरह की आपको जंप्स नजर आ रहे हैं, जो कि आपको इससे डिफरेंशिएट करवा रहे हैं. सो जितना भी आप अपने सैंपल्स बढ़ाते चले जाएंगे, आप इसके करीब होते चले जाएंगे. बट unless you keep m is equal to infinity, you will not reach here. This is called Gibbs phenomena. आप बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, of course you will be approaching to this shape, but you will not reach this shape till m is equal to infinity. Or m is equal to infinity पे yes you will reach here, but again that would be not realizable. Questions please. जी बेटा, any question?
हाँ सर। आपका नाम क्या है बेटा? अवैस? सर बेटा मेरा आपका? अली। अली। और उस्मान? यस सर। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? नो सर। एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर। ग्रेट। चलें। एंड नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ डीटीएफटी। तो उस्मान आप बताइए कि डीटीएफटी एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है? सर इस आइडियल लो पास फिल्टर में। नहीं, ओवरऑल अगर डीटीएफटी एग्जिस्ट करना हो तो क्या कंडीशन होती है? अगर हमारे पास एक्स ऑफ एन मौजूद है या एच ऑफ एन मौजूद है एंड वी वांट टू नो कि इस सिग्नल का या इस सिस्टम का डीटीएफटी एग्जिस्ट करेगा तो क्या कंडीशन होती है? सर इसका तो वैसे फॉर्मूला है कि हमारे पास एच ऑफ एन होना चाहिए, तो इससे हम फाइंड करते हैं। वैसे जो है वो माइनस पाई से पाई या किसी मतलब पीरियाडिक में वो लाई कर रहा हो, इन्फिनिट ना हो सिग्नल। इन्फिनिट ना हो, द एब्सोल्यूट सैंपल्स जो हैं वो आपके यस सर, वो जब आप समेबल हो। समेबल चाहिए तो दैट्स द सिचुएशन। अगर आपके पास एक्स ऑफ एन गिवन है और ये सिचुएशन है तो ये अगर कन्वर्ज करती है, ये सीरीज अगर कन्वर्ज करती है तो इट मींस डीटीएफटी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इनफैक्ट देयर आर टू मेथड्स। एक तो वो सिग्नल्स हैं जिनमें ये एब्सोल्युटली समेबल है और आपका जो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है दैट वुड बी कंटिन्यूअस ओनली अगर आप एब्सोल्यूट सेंस में ये फाइंड आउट कर रहे हैं। सो इफ दैट इज द सिचुएशन तो आपके पास सपोज मेरे पास कोई सिग्नल है, डाइवर्ज कन्वर्ज कर रहा है एक्स ऑफ एन, उसके सपोज दिस इज द सिग्नल, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, और दीज आर द सैंपल्स। तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है दैट मे बी प्रोबेबली दैट वुड बी समथिंग लाइक दैट। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म हम कहते हैं जी ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये यूनिफॉर्म सेंस, दिस इज द कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस इन यूनिफॉर्म सेंस। लेकिन देयर आर सर्टेन सिचुएशंस एज वी हैव सीन हियर कि ये यूनिफॉर्म सेंस में कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगा बिकॉज इट नेवर डाइज डाउन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। और अगर ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो इट हैज सम डिसकंटिन्यूटीज एट दीज लोकेशन, ठीक है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटीज मौजूद हैं। सो इसको हम मीन स्क्वायर एरर सेंस में इसको हम कहते हैं दैट इज स्क्वायर समेबल भी अगर हम हो तो दैट्स द लेसर स्ट्रिंजेंट कंडीशन ऑन कन्वर्जेंस कि अगर मीन स्क्वायर एरर सेंस में वो अगर वो समेबल है तो देन वी विल बी सेइंग कि वो भी आपका जो डीटीएफटी है वो एग्जिस्ट बट इन अ मीन स्क्वायर एरर सेंस में एग्जिस्ट कर रहा है। तो दैट्स द कंडीशन, सपोज दैट्स द वन। यहाँ पे क्या सिचुएशन थी? यहाँ पे अगर मैं इसको एब्सोल्यूट सेंस में, इसको यूनिफॉर्म सेंस में कन्वर्ज करेगा? कभी भी नहीं करेगा बिकॉज दैट्स द सिचुएशन, 1/n की फॉर्म में चीजें आ रही हैं आपके पास। लेकिन अगर आप इसे स्क्वायर सेंस में, मीन स्क्वायर एरर सेंस में लेके जाएंगे तो 1/n स्क्वायर हो जाएगा। तो इस बात का मतलब यह है कि जैसे जैसे आप n बढ़ता चला जाएगा इसकी कन्वर्जेंस जो है ये बढ़ती चली जाएगी। तो मीन स्क्वायर एरर सेंस में तो ये कन्वर्ज कर जाएगी ये सीरीज, लेकिन यूनिफॉर्म सेंस में ये कन्वर्ज नहीं करेगा। सो दीज आर द टू कंडीशंस, one is in uniform sense condition and the second one is mean square error sense condition, and that's why it is mean square error sense. That's the original x of exponential j omega, and that is जब आप उसको स्क्वायर सेंस में एब्सोल्युटली समेबल कर रहे हैं और उनका जो डिफरेंस है, द एरर है, दैट वुड बी एब्सोल्युटली समेबल फ्रॉम m is equal to n is equal to minus m to m। तो इम्पोर्टेंट है ये चीज कि आपका जो इसको इतना रख लेते हैं हम कि आपके लेवल तक इतनी ये चीज जरूरी है कि आपका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी है कि आपकी जो सीरीज है दैट मस्ट बी कन्वर्जिंग, आपका जो भी एक्स ऑफ एन है दैट मस्ट बी डिक्रीजिंग काइंड ऑफ थिंग, और एब्सोल्युटली समेबल होनी चाहिए सीरीज आपकी। इन दैट केस आपका जो discrete time Fourier transform है that would be existing। Any questions beta?
ना सर। Okay, so this सर is ये मीन end of स्क्वायर के सर ये थर्ड पॉइंट का मीन स्क्वायर का बता दें जिसमें लिखा है कन्वर्जेंस इन द मीन स्क्वायर सेंस। ये बेटा ये देखिए ना, आपका x ऑफ एक्सपोनेंशियल जी ओमेगा उसका सेंस में है, ठीक है। मीन स्क्वायर एरर सेंस का क्या मतलब हुआ कि x ऑफ एक्सपोनेंशियल जी ओमेगा दैट वाज द ओरिजिनल x ऑफ एक्सपोनेंशियल जी ओमेगा, हाइपोथेटिकली आपके पास सपोज करते हैं आपको मिल गया है, एंड दैट इज द थिंग व्हिच यू आर अप्रोक्सीमेटिंग in a similar fashion from n is equal to minus m to m. आपने कहा मैंने 15 सैंपल्स रखने हैं, तो n is equal to minus 7 to plus 7 x of n exponential minus j omega and the absolute difference. अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप एब्सोल्यूट डिफरेंस का स्क्वायर ले रहे हैं और फिर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो एरर मीन स्क्वायर एरर सेंस का क्या मतलब हुआ, आपने पहले एरर ली उसका स्क्वायर लिया फिर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं और मीन ले रहे हैं। सो इट्स मीन स्क्वायर एरर सेंस में आपके पास इफ इट इज 0 तो इट मींस कि आप कन्वर्ज कर रहे हैं, बट इन अ लेसर स्ट्रिंजेंट वे एज कंपेयर टू दिस थिंग, बिकॉज हियर यू आर सेइंग कि आपके पास x of n exponential minus j omega and that would always be lesser than, यानी ये वाली चीज जो है इससे हमेशा ये चीज कम ही आएगी, बिकॉज एक्सपोनेंशियल माइनस जी ओमेगा n जो है ये क्या है आपका, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है। सो दैट्स द यूनिफॉर्म सेंस। इस केस में आपके पास अगर आपका इस सेंस में कोई चीज कन्वर्ज कर रही है, इट मींस आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म हर वक्त क्या होगा, वो कंटिन्यूस होगा। दैट वुड नॉट बी आइडियल, इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी, इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी, बिकॉज इस तरह की सिचुएशन में आपके पास इम्पल्स रिस्पॉन्स इस तरह का आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास कोई फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, कंटिन्यूस काइंड ऑफ थिंग है, इस तरह की चीज है, तो इस बात का मतलब ये है कि यू आर फॉलोइंग दिस थिंग। लेकिन अगर इस तरह के मामलात हैं तो इट मींस कि आप स्क्वायर समेबल है आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स, उसका जो डिसकंटिन्यूटीज होंगी उसके जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसके अंदर डिसकंटिन्यूटीज होंगी, ठीक है बात। So that existence is आपको existence of DTFT is very important। इस बात का मतलब है कि कुछ सिग्नल्स ऐसे हैं जिनका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो उस केस में हमें फिर कुछ और टूल्स की तरफ जाना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है उनका एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सो दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 2। मैं I think I have answered your question. Yes, sir. Okay, so let's move to chapter number 3. Oh. Okay. So सबसे पहली चीज, again in the continuity of what we were saying just now, that why do we need Z transform? And as I was saying that there are certain sequences जिनका discrete time Fourier transform exist नहीं करता, so in that case we have to move towards some other, we have to take help from some other transforms. And what are those other transforms? The discrete domain में हमारे पास एक ट्रांसफॉर्म है that we called Z transform। अच्छा जी, क्या वजह क्या है, देखिए x of n a raised to power n u of n, ये आपके पास सीक्वेंस है, if a is lesser than n the Fourier transform is 1 over 1 minus a exponential minus j omega। if a is lesser than 1 it means the series will be converging and the Fourier transform will be written in this closed form expression। ठीक हो गई बात, agreed? Yes, sir. यस सर। ठीक है, लेकिन अगर a is equal to 1 है या a is greater than 1 है, इस केस में क्या सिचुएशन है, इस केस में ये अगर a is equal to 1 है तो ये सिचुएशन हो जाएगी x of n की, और अगर a is greater than 1 है तो ये सिचुएशन हो जाएगी। ऐसा ही है ना, इन दोनों केसेस में यू कैन नॉट राइट योर x of exponential j omega in this closed form expression because that was the condition on a, and if this series is diverging the Fourier transform doesn't exist or the series doesn't converge, so the Fourier transform of the discrete time Fourier transform does not exist।
So that's why that is the need कि हम किसी और ट्रांसफॉर्म की तरफ जाएं, and that other transform is Z transform. ठीक है. अच्छा, इसका काउंटर पार्ट जो है वो क्या है आपके पास एनालॉग डोमेन में, कंटिन्यूअस डोमेन में? दैट वाज Laplace transform. And what's the definition of the Laplace transform? It is here. H of s is equal to minus infinity to infinity, integrate कर रहे हैं आप h of t exponential minus st dt. So that's by definition is the Laplace transform. Geometric meaning क्या है? S is a plane, is a three-dimensional plane. Sigma axis real axis है, j omega axis imaginary axis है, and both sigma and j omega axis are moving from minus infinity to infinity. और एक थ्री डायमेंशनल प्लेन है, इसके ऊपर जो है ना कोई भी पॉइंट्स जो है वो हो सकते हैं. थ्री डायमेंशन का मतलब ये है कि इसके आप राइट साइड पे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, और इस स्क्रीन के अंदर की तरफ भी जा सकते हैं और इस स्क्रीन के बाहर की तरफ भी आ सकते हैं. ठीक है, यानी आप जो स्क्रीन को देख रहे हैं कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आपकी तरफ हो, और कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो स्क्रीन के अंदर पीछे की तरफ हो. ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट अ थ्री डायमेंशनल काइंड ऑफ थिंग. इसकी विजुअलाइजेशन जो है वो इस तरह से है. अच्छा जी, तो लैप्लास ये इक्वेशन कहां से आई है? ये इक्वेशन एग्जैक्टली वहीं से आई है जो कि हम पहले से एज्यूम करते रहे हैं कि आपके पास एक कंटिन्यूअस डोमेन में एलटीआई सिस्टम है, एंड वी नो दैट जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स हैं वो क्या है आपके, वो आइगन फंक्शंस हैं इस एलटीआई फंक्शन के. और जब भी कभी आप कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स को इस सिस्टम पे अप्लाई करेंगे या इस सिस्टम को इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल पे अप्लाई करेंगे तो व्हाट विल हैपन, this e raised to power st which is a complex exponential वो उसी तरह से वापस आ जाएगा, and the remaining thing will be the scaling factor, and as the complex exponential is in terms of s तो इस वजह से scaling factor भी आपका s में आएगा. So let's see what's happening. So x of t is input to the system, h of t आपका impulse response है continuous domain signal का, और y of t जो है that is output of the system, and if you are interested in knowing the output of the system you will be using convolutional integral. So y of t is equal to minus infinity to infinity h of t x of t minus tau deta convolutional integral. कुछ भी नहीं किया. Now you have replaced x of t with e raised to power st. So what will happen? You have kept h of tau as it is, and x of t minus tau is replaced with e of st minus tau, because this time your x of t is equal to e raised to power st. So the equation can be written in this form: h of tau e raised to power st e raised to power minus s star deta. E raised to power st is independent of the integral coming out, and the rest is this thing h of tau e raised to power minus s star, nothing but this thing you already हम लिख चुके हैं. That's the definition of your h of s, and that's reassuring that what you have thrown in that has spitted out. E raised to power st दोबारा से वापस आपके पास आ गया है, और this is your for a Laplace transform equation. Again, it is s is equal to by definition is sigma plus j omega, and this is the situation, that's the sigma axis, that's the j omega axis. थ्री डायमेंशनल प्लेन है, डिफरेंट वैल्यूज आपको मिल रही हैं. जहां पे आपको वैल्यूज इनफाइनाइट मिल रही हैं, these are the poles of the system. ठीक है, पोल्स हैं जो कि इनफाइनाइट वैल्यूज आपके सिस्टम की आ रही हैं, यानी एच एफ एस की वैल्यू जहां पे इनफाइनाइट है वो आपका पोल ऑफ द सिस्टम है. या तो वैल्यू आपकी तरफ आ रही है, आप अगर सपोज जहां बैठे हुए हैं आप इसे एज्यूम करें ये आपकी तरफ आने वाली इनफाइनाइट वैल्यू है, पॉजिटिव इन्फिनिटी है, और जो स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रही है वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है. तो देयर माइट बी सर्टेन सिचुएशंस जहां पे आपके पोल एग्जिस्ट करते होंगे ट्रांसफर फंक्शन के, वो वैल्यूज आपकी तरफ आ रही होंगी, और इसी तरह से कुछ वैल्यूज स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रही होंगी डिपेंडिंग ऑन के पोल्स किस तरह से हैं. और जो जीरोज हैं वहां पे फंक्शन एच एफ एस की वैल्यू जीरो होगी. So that is the thing that you have already studied in your signals and system course. Now the Laplace transform is very useful tool for the continuous time LTI system. What about discrete time LTI system? We use Z transform. मेरा ख्याल है हमारा टाइम खत्म हो गया है, इसको यहीं रोक लेते हैं और फिर कल यहीं से हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है जी? ओके सर.
इस पे तो बोल दो यस, किसी चीज पे तो बोल दिया करो। यस सर। सर हम जी ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं क्योंकि